اسٹیٹ بینک کو IMF کے حوالے کر دیا. خطے میں ہم اپنے تمام خطے کے ممالک کے مقابلے میں معاشی طور پر سب سے پیچھے رہ گئے. تو جب ایوان نے اس پر عدم اعتماد کیا تو اس نے اس وقت بھی ایک جھوٹا خط لہرایا. اندھے لوگوں نے آنکھیں بند کر کے ان کے جھوٹ کو قبول کیا. لیکن جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے, اس کی کوئی منزل نہیں ہوتی, وہ سب کچھ واشگاف ہو. آج اس نے ایک نیا ڈرامہ رچا ہے. ظاہر ہے جب پہلی خبر آئی تو ہم سب لوگ پریشان ہوئے. ہم نے ہمدردی کا بھی اظہار کیا, لیکن جو وقت گزرتا گیا اس واقعے سے لمحہ بلمحہ ایک جھوٹ ٹوٹتا. گولی ایک چلی ہے یا یہ کہ برس مارا گیا. گولی ایک لگی ہے, 2 لگی ہیں, 3 لگی ہیں, 4 لگی ہیں, 1 ٹانگ میں لگی ہے, 2 ٹانگوں میں لگی ہے, گولی لگی ہے, گولیوں کے ٹکڑے لگے ہیں. گولیوں کے ٹکڑے بم کا ٹکڑا تو ہوتا ہے, گولی کا ٹکڑا نہیں ہوتا ہے. کہاں سے ٹکڑے آ گئے؟ میں نے ایسے ان کے لوگوں کو دیکھا, پتہ نہیں گولی کہیں قریب سے بھی گزری یا نہیں, لیکن اتنا لگتا ہے کہ ان کے گالوں کا بوسہ لیا ہوگا زیادہ سے زیادہ. لیکن نیچے قمیض وہ ساری کی ساری خون سے بھری ہوئی. تو جس طرح برادران یوسف نے یوسف علیہ السلام کی قمیض کو جھوٹا خون لگایا تھا, یہاں بھی کچھ ایسے ہی منظر ہمیں لگ رہا تھا. پہلی مرتبہ پتہ چلا ہے کہ پنڈلی میں بھی شارگ ہوتی. کیا ڈرامے ہیں ڈاکٹروں کے, اپنے بیانات میں تضاد. کسی ہسپتال میں جانے کو تیار نہیں, یا تو 5-6 دنوں میں مشکل سے لاہور سے گجرانوالے پہنچتا ہے, اور یا جب گولی لگتی ہے تو اتنی تیزی سے دوڑتا ہے کہ 1 گھنٹے میں لاہور قریبی ہسپتال بھی نہیں. اتنے بڑے حادثہ جس کی وجہ سے آسمان سر پہ اٹھایا گیا. پھر ہڈی کا علاج کینسر اسپتال میں, پھر اس کے ڈاکٹر کا رپورٹ اور جو باہر سے ٹیم آئی ہے اس کی رپورٹ اور. واقعہ پنجاب کی سرزمین پہ, سیکورٹی پنجاب گورنمنٹ کی. بندہ پکڑا گیا تو پنجاب پولیس نے پکڑا, لے گئے تو پنجاب کے تھانے میں, تفتیش ہوئی تو پنجاب کی پولیس نے کی, اور بغیر تحقیق کے ملبہ ڈال دیا کہ جی وزیر اعظم پر پرچہ کاٹا جائے, رانا ثناء اللہ پہ پرچہ کاٹا جائے, ISI کی DGC پہ پرچہ کاٹا جائے. کیا مطلب؟ کس طرح آپ الزام لگا سکتے ہیں؟ اس طرح تو عام دیہاتوں میں کوئی شاید جس طرح عام لوگ ہوتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف دعوے داریاں فوراً کر دیتے ہیں, اس طرح تو وہ بھی نہیں کرتے. ایسی گفتگو جو کوئی عام شہری بھی شاید اس کو قبول نہ کرے, یہ ہمارے ملک کا ایک وزیر اعظم جو رہ چکا ہے اور منصب کو استعمال کر رہا ہے, اس قسم کی گفتگو کیوں کرے؟ کچھ تو سمجھنے کی ضرورت ہے معاملے کو.
اتنے غیر سنجیدہ ہو گئے ہم لوگ, ہمارا عام شہری بالکل غیر سنجیدہ ہو گیا ہے, کنفیوز کر دیا ہے سب لوگوں کو کہ ہم کر کیا رہے ہیں اور ملک میں ہو کیا رہا ہے. میرے خیال میں اس ایکٹنگ میں تو اس نے شاہ رخ اور سلمان خان کو پیچھے چھوڑ دیا تھا. اداکار بھی اس طرح ایکٹنگ نہیں کر سکتا جس طرح اس نے ایکٹنگ کر کے دکھائی, بھی ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے. کبھی دوڑ کے چلتا ہے, کبھی زخمی کے اوپر پلستر ڈالتا ہے اور لمبا پہنے. کون سا طریقہ ہے؟ ہڈی ٹوٹتی ہے تو پلستر ڈالا جاتا ہے, زخموں کو پٹی باندھی جاتی ہے. زخم کے اوپر پتہ نہیں یہ کہ ایک ٹانگ ہے, 2 ٹانگیں ہیں. اس طرح کا ڈرامہ شاید دنیا میں کوئی بچا سکے. اور وہ پشتو میں ہے کہ وہ ہم دیکھم دے اور ڈب دیکھم دے. بارام پہ قرآن کی دے کہ اس کو اخرے دکھان کی دے جاؤ. تو اس قسم کے کہاوتوں کو مزدان کر رہا ہے. واقعہ ادھر ہو گیا ہے, ملبہ وفاق پہ ڈال دیا ہے. مطلب میں کسی اور جگہ پہ ہوں, آواز کہیں اور دے رہی ہے. تو اس قسم کی ڈرامے بازیاں سمجھ میں نہیں آئی. ساری دنیا کو چور چور کہنا, کوئی وقار کی زبان بھی سمجھو, کوئی وقار کی زبان بھی سیکھو, اور خود سب سے بڑا چور پہ نکل آتا ہے. بات بنیادی یہ ہے کہ پہلے تو اس پر JIT ہونی چاہیے کہ اس سے جھوٹ کیوں بولا ہے. پہلے اس پر JIT ہونی چاہیے کہ اس سے جھوٹا خط کیوں لہرایا تھا. پہلے اس پر JIT ہونی چاہیے کہ اس نے ایک ریاستی راز کو کیوں اس طرح تشت و بام کیا, اس کو جھوٹ بنا کے, غلط معنی پہنا کے, غلط پیغام سے وابستہ کر کے کیوں لہرایا اسے. کس کس بات کو رویا جائے, کس کس جھوٹ کو رویا جائے, سمجھ میں بات نہیں آئی. تو بنیادی چیز یہ ہے کہ اب اس طریقے سے معاملات نہیں چلیں گے. لانگ مارچ ناکام ہو چکا ہے, ٹھس ہو چکا ہے, اب دوبارہ تشکیل نہیں دیا جا سکتا. اور شاید ڈرامے کے بعد کچھ ہمدردیاں, ڈرامے سے پہلے شاید کچھ ہمدردیاں ہمیں بھی ہو جاتی کہ یہ واقعہ ہو گیا ہے اور اس کے ساتھ نرمی ہونی چاہیے, تم نے وہ مواقع بھی گنوا دیے. اب حکیم ثناء اللہ بھی اس سے کہیں ذرا طاقتور نسخہ بنا کے بیٹھا ہوا ہے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ اسلام آباد میں آ سکیں. اور میں اپنی حکومت کو اور وزیر اعظم پاکستان کو کہنا چاہتا ہوں کہ کسی طریقے سے کوئی نرمی نہیں نکالنی, ڈٹ جانا ہے. اور پاکستان کی سیاست اور پاکستانی قوم کے ساتھ اس طرح کا کھلواڑ کرنے کی اجازت کسی کو بھی نہیں دی جا سکتی. انشاءاللہ مقابلہ کریں گے اور یہ کوئی چیز اب نہیں رہے گی. انشاءاللہ مزید پوری طرح مقابلہ ہوگا اور کوئی رعایت ان کو اب نہیں دی جائے گی. اور ان کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہاں زمین بہت سخت گرم ہے, تمہارے طلبے اس زمین کو برداشت کرنے کے قابل اب نہیں رہے. جس طرح آپ نے بھی کہا کہ ان کو جو ہے اسلام آباد آنے نہیں دیا جائے گا, ان کی حکومت میں آپ یہاں پر آئے تھے, آپ نے لانگ مارچ کیا تھا, انہوں نے تو کچھ نہیں کیا تھا. دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ آپ نے ماضی میں کہا کہ عمران خان کی حکومت کے پیچھے اداروں کا ہاتھ ہے. اب وہ آپ پہ الزام لگا رہا ہے کہ اس حکومت کے پیچھے اداروں کا ہاتھ ہے. اس میں جو ہے دونوں بڑی چیزیں. ہم نے لانگ مارچ کا اعلان کیا, جہاں پر انتظامیہ نے ہمیں کہا ہم وہیں رکے. کراچی سے لے کر, کوئٹہ سے لے کر, چترال سے لے کر, گلگت سے لے کر, گوادر سے لے کر, جہاں جہاں سے قافلے آئے, راستے میں ایک مسافر پاکستان کو بتا دے کہ اس کے سفر میں اس کو کوئی فرق نہیں, کوئی بس رکی ہو, کوئی گملہ ٹوٹا ہو,
कोई पत्ता गिरा हो। और यहाँ पर हम आए, 15 दिन रहे, जिस नज़्म के साथ पुलिस की यहाँ पर जो ड्यूटियाँ थी वो रिलैक्स हो गए। वो हमारे मुजाहिरीन के साथ बैठ कर खाना खाते थे, मिलकर नमाजें पढ़ते थे, और बिल्कुल शाइस्तगी के साथ मामला हुआ और चले। उसके बाद ये आए, कोर्ट ने कहा कि इनको आने दो, हालांकि उनके अज़ाइम का जब हुकूमत को पता चल जाता है, इंटेलिजेंस रिपोर्टें आ जाती हैं, तो हुकूमतें इंटेलिजेंस रिपोर्टों पर फिर पॉलिसी और हिकमत अमली बनाती है। सो हमने हिकमत अमली बनाई, लेकिन कोर्ट ने कहा कि नहीं आने दो। कोर्ट के आने पर आए, जो जगह उनके लिए मुख्तस की गई, क्या वो वहां रुके? क्या वो आगे नहीं बढ़े? क्या वो डी चौक पे नहीं आए? क्या ब्लू एरिया को आग नहीं लगाई? ये होता है फर्क कि आप मुझे कह सकते हैं तो मेरी पोजीशन ये थी, जब हम इनको रोक रहे हैं तो उनकी पोजीशन ये है। और जहां तक है इदारों की बात, बाबा बात है साफ, हमारी शिकायत इदारों से थी कि आप उसकी पुष्पनाई कर रहे हैं। उसकी शिकायत यह है कि तुम न्यूट्रल क्यों हो, तुम मेरा साथ दो। फर्क समझो जरा इस बात। अब ये कहता है कि आर्मी चीफ मेरी मर्जी से बने। अगर इस तरह मर्जी से बनना है तो फिर पीपल्स पार्टी का अपना आर्मी चीफ होगा, फिर मुस्लिम लीग का अपना आर्मी चीफ होगा, फिर हमारी पार्टी का अपना आर्मी चीफ होगा। फिर ये तो अजीब फौज होगी। फिर तो इस किस्म के बेतुके किस्म के आइन से मावरा बातें करना, मुतालबात करना, ये उसको अपना खौफ नजर आता है। गोली मारने वाली सियासत है, इसको आप किस तरह देख रहे हैं? और इस गोली मारने वाली सियासत में आप अपने आप को महफूज समझते हैं? देखिए, मुझ पर कुछ हमले हुए, अकरम खान दुरानी पे हुए, मौलाना गफूर हैदरी पे हुए, मौलाना हसन जान हमारे पार्लियामेंटेरियन थे, उनको शहीद किया गया, मौलाना मेराजुद्दीन हमारे को शहीद किया गया, मौलाना नूर मोहम्मद सवाना के उनको शहीद किया गया, हमारे पार्लियामेंटेरियन रह चुके हैं। और उलमाए किराम, शुयूख हदीस, कहाँ कहाँ पर उनकी शहादतें हुई। इस वक्त 1 साल के अंदर बाजवड़ के अंदर जमीयत उलमाए इस्लाम का अगर एक साथी जो 1 महीना पहले बम धमाके में गाड़ी उड़ गई और वो बच गया, अगर वो भी शहीद हो जाता तो ऐसा तरह होता। 16 हमारे नौजवान उलमाए किराम शहीद हुए हैं। हज के दिनों में हम अभी हज पे थे, मीरली में हमारे 3 दुआमा शहीद हो गए। एक हमारे सूबाई असम्बली के कैंडिडेट, एक हमारा नौ मुंतखब इलाके का चेयरमैन, और एक हमारा तहसील सेक्रेटरी जनरल शहीद हो गए। और दूसरे इलाकों में यही सूरत हाल है। तो इसके दौर में तो हमारे साथ वो कुछ हुआ और अभी तक वो सिलसिले चल रहे हैं। हम यकीनन एक बड़ी मुश्किल में हैं। ये लोग पहले क्यों नहीं थे, और जब हुकूमत तब्दील हो रही थी तो क्यों पाकिस्तान में आ गए, और एकदम वो सूरत हाल और उससे बढ़कर खतरनाक सूरत हाल क्यों बन गई है। हम तो चाहते हैं कि पाकिस्तान में अमन, जो भी पाकिस्तान का शहरी है वो पुरअमन ज़िंदगी गुजारे, इज़्ज़त और वक़ार की ज़िंदगी गुजारे, आइन और कानून के ताबे ज़िंदगी गुजारे। कुछ गलतियाँ हैं जो रियासती सतह पर भी होती हैं, उससे इख्तलाफ किया जा सकता है, लेकिन उसका इजाला कैसे किया जाए वो रियासत की जिम्मेदारी है। लेकिन सूरत हाल ये है कि हमने कुर्बानियाँ दी हैं, हम अमन अमान के लोग हैं। आप मुझ पे बता दें कि जमीयत उलमाए इस्लाम की किसी एक कारकुन के हाथों पाकिस्तान का सियासी जब मुखालिफ नहीं कोई शहरी अब तक मुतासर हुआ। किसी जगह पे जब मरियम नवाज साहबा का दरवाजा तोड़ा गया था कराची में, और आपने यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, सेम उससे भी बढ़ के जो है वो आज़म सवादी के साथ हुआ है। उसकी वीडियो आ गई और ज़ाहिर है जहाँ पे वो मौजूद थे उन्होंने खुद उसकी तस्दीक कर दी कि ये जगह उसी वही है जो वीडियो है। क्या इसकी भी फुल कोर्ट से तहकीकात नहीं होनी चाहिए? कब तक इस तरह ब्लैकमेल किया जाएगा सियासतदान? ऐसे वाक़यात की मैं 1000 दफ़ा मज़म्मत करता हूँ, लेकिन मैं इस पर मज़ीद तबसरा नहीं कर सकता। आज़म सवादी को अपनी हया कितनी अजीज़ है या नहीं, लेकिन मुझे उसकी हया अजीज़ है। मौलाना साहब ये बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की इज़्ज़त जो है वो मुतारिफ कराई थी निकेत अब्बा, तो निकेत अब्बा का रुख अब आपकी तरफ है कि इमरान खान की तरफ? मौलाना साहब एक मौलाना साहब सुप्रीम कोर्ट की अभी वजाहत आई आज़म साहब बात तो पूरी कर लेता। अगर अब्बे ने अपनी मर्जी से बकाई में होश व हवास
बरज़ा और रग़बत अपने निक्के को आग कर दिया है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? स्टेटमेंट आई है सुप्रीम कोर्ट की, मौलाना साहब स्टेटमेंट आई है सुप्रीम कोर्ट की, ये जो अभी मामला था आजम स्वाति वाला, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो वज़ाहत आई है उसमें ये कहा गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट जिसकी है नाजिस है कोर्ट वहाँ पे आजम स्वाति कभी रही नहीं। एक तो अभी आई है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से वज़ाहत आई है। दूसरी बात ये बताएं कि इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल है, इमरान खान साहब ने ड्रामा किया या कुछ किया, लेकिन उनकी मैशत को नुकसान जरूर हुआ, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है और इलेक्शन की तरफ भी 8 से 10 माह के बाद जाएंगे, तो मुल्क सर्वाइव कैसे करेगा? अगर खान को एक साइड पे ये हुकूमत में था तब भी उसका एजेंडा मुल्क की मईशत को तबाह करना था, ये हुकूमत से निकल गया तब भी उसका एजेंडा जो है वो मुल्क की मईशत को तबाह करने का है। ये जो कुछ कर रहा है अपने नामुकम्मल एजेंडे की तकमील के लिए कर रहा है। अच्छा मौलाना साहब, खैबर पख्तूनख्वा में आपकी डिमांड है कि वहाँ पर गवर्नर लगाया जाए और अभी तक गवर्नर नहीं है वहाँ पर, गवर्नर ना लगने की वजूहत क्या है? एक जरा सा फरियाद के दिन थोड़े सुनने में यह आ रहा है कि जहाँ पर वो जलसों में खड़े होकर बात करते हैं और निशाना बनाते हैं तनकीद का, वहीं पर पसे पर्दा यानी कि राब्ते किए जा रहे हैं। तो किस हद तक आपसे कोई बात हुई वज़ीर आज़म की या साबिक़ सदर आसिफ ज़रदारी की कि ये राब्ते किए जा रहे हैं, कि कह रहे हैं कि कुछ सेफ सेविंग दी जाए? मुझे ज़रदारी क्यों बताए, मुझे शहबाज शरीफ क्यों बताए? जिनसे वो राब्ते कर रहे हैं वो खुद बता रहे हैं आपको। मुझे कहने की क्या ज़रूरत है? मौलाना साहब मेजर जनरल पे इल्जामात लग रहे हैं और आसिफ स्वाति भी उनका जिक्र कर रहे हैं, इमरान खान भी उनका जिक्र कर रहे हैं। आपके दौर में पीडीएम की सारी क़यादत उस वक्त ये आईएसआई चीफ पर इल्जाम लगाती रही और फैज अमीन का तबादला भी पीडीएम के प्रेशर के बाद किया गया। आप क्या कहेंगे कि इस तरह के वाक़यात आपने तो सही हैं, आप अपोजिशन में तो इस तरह होता था। मैं बड़ी वजाहत के साथ कहना चाहता हूँ, मैं कोई इंडिया की फौज की बात नहीं कर रहा, मैं अपनी पाकिस्तान की फौज की बात कर रहा हूँ। उसका मेरे साथ रिश्ता है, वो मेरी फौज है, मैं पाकिस्तानी शहरी हूँ, वो मेरी फौज है। मैं गिला शिकवा कर सकता हूँ, किसी भी जनरल से मैं एक शिकवा कर सकता हूँ, लेकिन खुदा न खास्ता उसके ऊपर कोई इल्ज़ाम लगाना, उसकी दारकुशी करना, उसको गाली देना, ये तो कोई ऐसी हमारी सियासत है। आपने ये कहा कि जो भी एपिसोड हुआ है इस पे जो इंडिया में जो इंडियन मीडिया को जिस तरह उसकी खुशियां थी जो उछाला जा रहा था उसको अभी आपने कुछ बताया भी है। तो जिस कहते हैं तो पाकिस्तान में जब खुश होते हैं, दूसरा था आईएसआई पे खुश हुए वो कि डीजीसी आईएसआई को इस तरह से रखेता गया, और दूसरे ये बता दें कि जो शहबाज शरीफ साहब ने सुप्रीम कोर्ट से जो इस्तदा की है उसको आप कैसे देखते हैं? ये कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के सुना है कि अदाकार बड़े टॉप दर्जे के अदाकार, वो अपने अदाकारों की एक्टिंग से इतने शायद इंजॉय नहीं किया होगा उन्होंने जितना कि आज हमारे इस एक्टर की एक्टिंग से उसने इंजॉय किया। ये है हिंदुस्तान की पोजीशन। इससे ज़्यादा इंजॉयमेंट जो है इंडिया के लोगों की और उनकी इदारों की और नहीं हो सकती। मौलाना साहब आपने कहा, जहाँ तक है शरीफ साहब की बात मैंने आपसे अर्ज किया कि जब वो वापस आएंगे तो इस पर गुफ्तगू होगी, क्योंकि मेरे इल्म में अभी तक नहीं है, वो अभी आज मुझसे बाहर गए हुए हैं, तो जो ही सूरत हाल है। लेकिन सवाल ये है बुनियादी कि अरशद शरीफ के वाक़े में बुनियाद ये रखी गई कि हाँ हमने मुल्क से भेजा है, लेकिन एक थ्रेट लेटर की बुनियाद पर भेजा है। हमें बताया जाए थ्रेट लेटर किधर है। एक ही कॉपी उसकी है और वो सिर्फ चीफ मिनिस्टर के पास है। भला एक इदारा अगर थ्रेट लेटर जारी करता है तो वो उसी के पास रहता है। वो तो तमाम इदारों के छोटे छोटे अफसरान को लोकल लेवल तक पहुंच जाता है ताकि वहाँ पर वो दहशतगर्दों की पीछा करे। लेकिन यहाँ कोई कॉपी किसी के पास नहीं है। लिहाजा अरशद शरीफ के हवाले से अगर तहकीकाती कमीशन बनता है तो अभी से हम बता देना चाहते हैं कि सूबे के चीफ मिनिस्टर को और उसके फेडरल वज़रा जो सूबे से ताल्लुक़ रखते हैं उनको शामिल तफ्तीश किया जाए। और बुनियादी बात यह है हम अगर कुछ बनाएंगे तो फिर इब्तिदा से बनाएंगे। तुमने खत क्यों ले रहा है, उनके राज को क्यों फाश किया, झूठ क्यों बोला, बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात हमारे क्यों इस हद तक पहुँचाए कि कोई हम पे एतमाद करने को तैयार नहीं है। ये सारी वो चीज़ें हैं कि जिसकी बुनियाद पर हम कहते हैं कि सब चीज़ की तहकीक होनी चाहिए, और तहकीक होगी तो फंस जाओगे। फिर जिस तरह आप फंसे हुए हो, बंद गली में जा चुके हो, तुम्हारे लिए अब निकलने का रास्ता नहीं है। और अगर ये आज के ज़माने की नए दौर की मीडिया न होती,
तो फिर आपकी तो आवाज़ ही खत्म हो चुकी है। झूठ का सहारा लेकर तो अपने आप को जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं। लिहाजा ये कुछ भी नहीं है, हमारे नज़दीक उनकी सियासत मर चुकी है, आखिरी तड़प रहा है और इसकी अब सियासत हुकूमतों पर नाकाम। सर वो जो FIR काटी जाती है साफियों के खिलाफ, उसकी आप मजम्मत करेंगे? सहाफ़ियों पर सबसे ज़्यादा FIR, सबसे ज़्यादा तशद्दुद सहाफ़ी पर, सबसे मीडिया पर सबसे ज़्यादा पाबंदी इसके दौर में लगी है, इसी के दौर में लगी है। सर मैं यहाँ से एक बड़ी बात पर एक सवाल करने की कोशिश कर रहा था। आपने बात की थी आर्मी चीफ की तकर्री के लिए अगर PTI को मनाए तो एक उनका होना चाहिए या उनका होना चाहिए। सर आर्मी चीफ तो पाक आर्मी से ही आना है, तो उसके लिए बैठकर क्यों नहीं उसका मसले का हल तलाश किया जाता? अगर बैठ करने का तो मतलब ये है कि आईन नहीं है, कोई अथॉरिटी नहीं है हमारे मुल्क में। वज़ीर आज़म ने इसका फैसला करना है, आइन के मुताबिक करना है, मेरिट पे करना है और बस खत्म हो गई बात। इसके सावधीन है, उसको हम लोग क्या देना चाहिए। जब ये किसी को मुकर्रर करता था या एक्सेप्शन दे रहा था तो किससे पूछा था उसने? मौलाना साहब आपने कहा कि इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च हम इस्लामाबाद में इंतजार नहीं होने देंगे, आप इंतशार की बात करते हैं, एहतजाज तो उनका जमहूरी हक है, अगर आप इस्लामाबाद में उनको दाखिल नहीं होने देंगे तो हुकूमत खुद नहीं। देखिए उन्होंने असलहे की बात की है या नहीं, खून खराबी की बात की है या नहीं, उनके वजीरों के बयान, उनके सूबाई वजीर का हाथ असलहा लहरा के इस्लामाबाद जाना, तो अगर इस किस्म की बातें वो करेंगे और इस्लामाबाद की तरफ असलहा लाने की बातें आएंगी और बाकायदा मीडिया में खुद वो कहेंगे कि हम आ रहे हैं असलों के साथ, और फिर उनका अपना बंदा एक दिन पहले कर रहा है कि ये खूनी लॉन्ग मार्च होगा, यहाँ जनाजे उठेंगे, यहाँ लाशें उठेंगी, क्या इस्लामाबाद को हम इस चीज़ का तमाशा बनाएं? और पहले साबित हो चुका है कि आए और डी चौक पर उन्होंने पूरे इलाके को आग लगाई हुई थी। तो इस किस्म की जो जुनूनियत उसने अपने माहौल में पैदा की हुई है, इंतहा पसंदाना रविश, इल्ज़ाम तो उलमा और मज़हबी लोगों पर लगाया जा रहा है। तो ये जो कह रहा है कि अल्लाह मेरी उस तरह तरबियत कर रहा है जिस तरह की नबी की तरबियत करता था, तो अब तो मेरा ख्याल नबी बन चुका होगा। तरबियत करते करते मेरा ख्याल में नाउज़ुबिल्लाह अब तो दावा कर लेना चाहिए कि अब मैं नबूवत के मकाम पर पहुँच चुका हूँ। तो इस किस्म की बोंगियाँ मारना, इस किस्म की खिलाफ शरीयत गुफ्तगू करना, और फिर जिस तरीके से उनके लोग, उनकी जो लॉन्ग मार्च में शरीक ख़वातीन और नौजवान जिस अंदाज से पेश हो रहे हैं, उसमें कहीं कोई रियासत मदीना का नक्श नज़र आता है, कोई शरीयत मुतहरा का नक्श नज़र आता है, कोई दीन का और मजहबी टच लगाओ, किसी का टच नहीं है, हर चीज़ को टच। अब उन्होंने जरा दहशतगर्दी का टच लगा दिया अपनी तहरीक को। तो इस किस्म की चीज़ों को इस्लामाबाद में आने का मतलब ये है कि पूरे मुल्क के निज़ाम को जाम कर दिया जाए, मुल्क का निज़ाम इंशाअल्लाह नज़ीर चलता रहे। देखिए मुफाहमत के लोग जाने पहचाने होते हैं, हम न मुज़ाकरात का इनकार करते हैं, मुफाहमत का इनकार करते हैं, लेकिन मुफाहमत के लोग जाने पहचाने होते हैं। समझ में आता है कि हाँ इससे बात की जाए तो कोई माकूल बात करेगा, तो जहाँ पब्लिक के सामने आज तक उसकी कोई माकूल बात हमने नहीं सुनी, न उसके अंदर ये सलाहियत मौजूद है, सिवाय तकरीब के कि जब हुकूमत में होता है तब भी तकरीब, जब हुकूमत से बाहर आता है तब भी तकरीब, तो फिर तकरीब को मिट जाना चाहिए, तकरीब को तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलना चाहिए। मौलाना साहब बताइएगा कि नवंबर में ही धरने होते हैं, जलसे होते हैं, मुजाहरे होते हैं, ये नवंबर की जो जलसे हैं, ये जो धरने हैं, ये मसला मुस्तकिल तौर पर हल क्यों नहीं होता? आज तो मखलूत हुकूमत है, तमाम सियासी जमातें एक तरफ हैं, कम से कम इस मसले को मुस्तकिल तौर पर हल कर ले, इस पर कभी नहीं सोचा सियासी जमातों ने। क्या जब आपने धरना दिया था तो आपके कंटेनर से ऐलान हुआ कि हम 2 दिन बाद डी चौक जाएंगे, अभी तो आप धरने से बाहर आए, तो उन ताकतों के नाम लेंगे जिन्होंने आपको धरना खत्म करने में मजबूर किया। पॉलिसी की जो पॉलिसी थी उसको थैंक यू सर।